Download dedicated Pharmacy India app. They provide online test series for competitive exams related to pharmacy like GPAT, Drugs Inspector, NIPER, previous year question papers, pharmacist and all. Link is given in the description. Hello students, so welcome to the channel. So today in this video we are going to discuss the gastrointestinal drug questions with their detailed explanation. Students, हम 20 questions discuss करने वाले हैं. So इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इन सेकंड पार्ट वी आल्सो डिस्कस दी 10 मोर क्वेश्चंस. सो सर चलिए इस फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. दैट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैज enzyme inhibitory activity, and the options are: option A is rabeprazole, option B is lansoprazole, option C is pantoprazole, option D is omeprazole. So which of the following proton inhibitor has enzyme inhibitory activity? So the correct answer is that rabeprazole. Rabeprazole as having the enzyme inhibitory activity. तो चलिए एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं थोड़ा सा. That omeprazole and esomeprazole are microsomal enzyme inhibitors. These may decrease the metabolism of diazepam, where lansoprazole enhances the metabolism of theophylline. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर गिवन. The options are: option A is after meal, option B shortly before meals, option C is along with H2 blocker, option D is during prolonged fasting period. So जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है वो कब इफेक्टिव होता है? जब उसको हम बिफोर मील देते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या कारण होता है. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर यूज्ड जस्ट बिफोर मील्स. क्यों? फूड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड. ठीक है. जो हमारा खाना होता है, जब हम जस्ट वी टेक द फूड, देन इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन that will be reduced by proton pump inhibitors if these are given just before meals. Okay, so students, I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. Now अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं. Gynecomastia can occur as a side effect of, and the options are bromocriptine, cimetidine, famotidine and levodopa. So students, gynecomastia is an adverse effect where the male person is having the enlargement of breast is called your gynecomastia. ठीक है, in males. So अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ. कौन सा ड्रग शो करता है, किसका साइड इफेक्ट है gynecomastia? So करेक्ट आंसर इज cimetidine. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ थोड़ा सा हम cimetidine के बारे में और डिटेल में देख लेते हैं. दैट cimetidine is your H2 receptor antagonist. Okay students. Second point, that it is not used in very frequent way. उसके 3 रीजन बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स. क्यों? जिसमें से एक हम गायनेकोमेस्टिया का रीजन भी पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहला है, ये क्या करता है, ये क्रॉस कर लेता है ब्लड ब्रेन बैरियर. ब्लड ब्रेन बैरियर अगर क्रॉस करेगा तो रिजल्ट इन मेंटल चेंजेस. ठीक है, result in mental changes. Second reason, that it inhibits the binding of dihydrotestosterone to androgen receptor. ठीक है, बाइंडिंग इनहिबिट करेगा. उसकी वजह से क्या होगा? इम्पोटेंसी हो जाएगी इन मेल्स. इम्पोटेंसी. ठीक है, impotency in males. Now third reason, that it inhibits the metabolism of estradiol. inhibit कर देगा मेटाबॉलिज्म को. किसके? एस्ट्राडायोल के. ठीक है. and increase serum prolactin level on long term use. क्या करेगा? प्रोलैक्टिन लेवल को इंक्रीज कर देगा. ठीक है. सो क्या होगा? जो फिर दो मेल्स में एंड फीमेल्स में अलग अलग एडवर्स इफेक्ट देगा. इफ मेल टेक्स, देन इट
लीड्स टू द गायनेकोमेस्टिया, ठीक है। एंड इफ फीमेल, इन फीमेल केस द एडवर्स इफेक्ट इज गैलेक्टोरिया, ठीक है, गैलेक्टोरिया। And student, it is a potent inhibitor of CYP cytochrome enzyme, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। That drug of choice for the treatment of peptic ulcer caused due to chronic use of NSAID is, and the options are, option A is pyrazipine, option B is loxatidine, option C is misoprostol, option D is esomeprazole. So drug of choice for the treatment of peptic ulcer which is caused by chronic use of NSAID means जो NSAID की वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो उसके लिए हम कौन सा ड्रग प्रीफर करते हैं, मोस्टली प्रीफर। सो योर करेक्ट आंसर इज एसोमेप्राजोल। ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दैट प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आर द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्यू टू एटियोलॉजी, ठीक है। And misoprostol is the most specific drug for the treatment of PUD due to chronic NSAID and used because it is a PGE1 analog. I hope students PGE1 means prostaglandin analog, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका रीजन। So now अब next question पर चलते हैं। M1 blocker used in peptic ulcer disease is, and the options are, option A is pyrazipine, option B is pyridostigmine, option C is your atropine, option D is oxybutynin. So M1 blocker है जो कौन सा है जो पेप्टिक अल्सर में यूज होता है। सो योर करेक्ट आंसर इज द pyrazipine, ठीक है। pyrazipine स्टूडेंट्स, इट इज योर एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक क्लास का होता है एंड गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर क्लास में होता है। सब क्लासेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिमेटिडीन इनहिबिट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स एक्सेप्ट, जिसका नहीं करता हमको उसका बताना है, ठीक है, मींस इसमें से 3 का करता है। नाउ the correct answer is your ketoconazole, ठीक है। कीटाकोनाजोल का नहीं करता है मेटाबॉलिज्म सिमेटिडीन इनहिबिट, ठीक है। सो इसका मतलब फेनिटोइन का करता है, वारफेरिन का करता है, डायजेपाम का करता है। सिमेटिडीन इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम एंड इट प्रोलॉन्ग्स द हाफ लाइफ ऑफ वारफेरिन, थियोफाइलिन, फेनिटोइन और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ठीक है, एंड अल्कोहल एंड बेंजोडाइजेपिन। Ketoconazole students, your as antifungal drug and it is used as an antifungal agent in antifungal creams. Now next question पर चलते हैं students। Which of the following is not an antacid? And the options are, option A is magnesium sulfate, option B is megaldrate, option C is magnesium trisilicate, option D is magnesium hydroxide. So विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटासिड, हमें मतलब इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो एंटासिड नहीं है, बाकी 3 एंटासिड हैं। सो कौन सा नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इज नॉट योर एंटासिड, मींस इसका मतलब ये तीनों एंटासिड है। सो स्टूडेंट, एंटासिड होते क्या है? एंटासिड आर द बेसिक सब्सटेंस which neutralize gastric acid and raise the pH of gastric content, ठीक है, समझ गए हैं। एंटासिड 2 क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में 2 आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट, याद रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। नाउ नॉन सिस्टमिक में आते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मेगाल्ड्रेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे। एंटासिड 2 क्लास में कभी कभी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
esomeprazole acts by inhibiting, and the options are: option A is hydrogen potassium ATPase pump, option B is hydrogen sodium ATPase pump, hydrogen pump, or any of the above. So जो एसोमेप्राजोल है वो किस मैकेनिज्म पे काम करती है, किस पंप को इनहिबिट करती है? सो द करेक्ट आंसर इज द हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप। स्टूडेंट्स, एसोमेप्राजोल जो होता है वो आपका एसएन एंशियोमर होता है ओमेप्राजोल का, याद रखेंगे, एसएन एंशियोमर ऑफ ओमेप्राजोल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेटक्लोप्रोमाइड एंड द ऑप्शंस आर, मेटक्लोप्रोमाइड के बारे में जो स्टेटमेंट सही है वो हमें बताना है। इट इनहिबिट्स क्लोरिनर्जिक स्मूथ मसल स्टिमुलेशन इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और डिक्रीज लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर प्रेशर, स्टिमुलेट D2 रिसेप्टर और एनहांस कोलिनिक मोटिलिटी। एंड द करेक्ट आंसर इज द एनहांस कोलिनिक मोटिलिटी। सो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम डिटेल में देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ। दैट मेटक्लोप्रोमाइड इज अ D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट which increase cholinergic activity by inhibiting presynaptic D2 receptors in GIT। याद रखिएगा स्टूडेंट, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट देख लेना, D2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन इनहिबिट द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, ठीक है। D2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो जाएगा तो इनहिबिट द रिलीज ऑफ ACH। नाउ इट इंक्रीजेस LES टोन दैट is also responsible for anti-emetic action। LES क्या है आपका? LES stands for lower esophageal sphincter, ठीक है। Two more points about this question, that it does not significantly increase colonic motility, but out of the 4 options, मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हमारा ये ज्यादा प्रिफरेबल है, that this is the best answer because although not significantly but it can increase colonic motility, whereas other options are definitely wrong। I hope students आपको मेटक्लोप्रोमाइड के बारे में समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में। Now next question is and last question of this video, ondansetron acts by, options are acting on CTZ क्या है आपका? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। एंड द ऑप्शन बी इज 5-HT3 एंटागोनिज्म, ऑप्शन सी इज D1 एंड D2 रिसेप्टर एंटागोनिज्म, ऑप्शन डी इज बोथ A एंड B। सो ondansetron हमें बताना है किस मैकेनिज्म पे काम करती है और वो कैसे काम करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ A एंड B। सो इसका मतलब इट एक्ट्स ऑन CTZ और इट इज इन द क्लास ऑफ 5-HT3 एंटागोनिज्म। स्टूडेंट्स, जितने भी सेट्रॉन क्लास के हैं, जो अभी आप इसमें में देखेंगे सेट्रॉन, दे आर दी 5-HT3 एंटागोनिस्ट, 5-HT3, ठीक है, एंटागोनिस्ट। सो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा ondansetron के बारे में बता देता हूँ। दैट ondansetron कब प्रीफर किया जाता है? जब भी कोई कैंसर पेशेंट रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से गो थ्रू होता है तो देयर इज अ चांस ऑफ इंड्यूशन ऑफ एमेसिस, मीन्स वॉमिटिंग का सेंसेशन आता है। सो ondansetron हम उस चीज के लिए देते हैं, वो एज एन एंटी एमेटिक, सो दैट दे कैन प्रिवेंट द वॉमिटिंग बाय यूजिंग दिस ड्रग। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। So in the next part we also discuss the 10 more question. So I hope you like this video. Thanks for watching.